Hi friends, in this video we are going to talk about MCQs regarding retained placenta. Okay, so retained placenta is, first of all, what is the definition or what is known as retained placenta? So is it a placenta that is not expelled in the second stage of labor, placenta that fails to deliver even after 60 minutes of birth of baby, or placenta that is not expelled even half an hour after delivery of baby, or both A and C? First of all, placenta that is not expelled in the second stage of labor. Is it a retained placenta? No, not at all, because placenta is not supposed to, or it is not supposed to be expelled in the second stage of labor. In the second stage of labor, what is expelled? That is the baby. Okay, in the second stage of labor, baby is delivered, not placenta in a normal scenario. So placenta that is not expelled in the second stage of labor is not retained placenta. It is a normal situation. It is a normal condition. Now placenta that fails to deliver even after 60 minutes of birth of baby, that is not a retained. It is not a definition because it is too late. Okay, 60 minutes, that is 1 hour, is very मतलब ये बहुत ज़्यादा duration है. This is not the correct definition. Yes, placenta that is not expelled even half an hour after delivery of baby, that is 30 minutes after delivery of baby, is known as retained placenta. So basically the during the third stage of labor, that is the third stage of labor lasts, it starts from the point where the baby is delivered, that is the end of the second stage of labor. वहाँ से लेकर बेबी एक बार डिलीवर हो गया, वो पॉइंट से लेकर प्लेसेंटा की डिलीवरी तक जो बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है, इट इज़ नोन एज थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. तो इसमें जो है प्लेसेंटा डिलीवर होता है. एंड नॉर्मली आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, नॉर्मली अगर हम लोग इफ़ वी लेट नेचर टेक इट्स कोर्स, अगर हम लोग नॉर्मली जाए बिना किसी इंडक्शन के और बिना किसी चीज़ के, देन इट टेक्स 15 to 20 मिनट्स नॉर्मली. और अगर कुछ मेजर्स दैट इज़ मेजर्स लिए जाए, दैट इज़ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये सब चीज़ें की गई, तो 5 to 10 मिनट्स. टेक 5 to 10 मिनट्स आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी. फॉर 5 से 10 मिनट डिलीवरी ऑफ बेबी के बाद जो है प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है. तो अगर हाफ एन आवर हो गया है, दैट इज़ 30 मिनट्स हो गए हैं बेबी की डिलीवरी के बाद, और उसके 30 मिनट्स बाद तक प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हुआ है, दैट इज़ नोन एज रिटेन प्लेसेंटा. So the option C is correct. Okay. Now the next question is, most common cause of retained non-separated placenta is atonic uterus, and the reason is given as uterine contraction helps in placental separation. So if we look at it, most common cause of retained non-separated placenta is atonic uterus. Yes, it is correct, because the reason which is given as uterine contraction helps in placental separation very much explains the assertion, because uterine contraction, when it contracts, the myometrium contracts, और उसके जो fibers होते हैं, muscle fibers, वो contract होते हैं, मतलब उसकी उनकी जो size है वो reduce होती है. and जब वो contract होते हैं, that it helps the placental separation from its placental site. तो जो भी uterine contraction is one of the major reason that helps in placental separation. That's why in atonic uterus, the uterus that fails to contract, जो flags है, जो flabby है, इस तरीके के यूट्रस में जो है प्लेसेंटा रिटेन्ड हो जाता है, इट इज़ नॉट एबल टू सेपरेट. और इसलिए मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है, या मोस्ट कॉमन कॉज है, वन ऑफ द भी नहीं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिटेन नॉन सेपरेटेड प्लेसेंटा इज़ एटोनिक यूट्रस. बिकॉज प्लेसेंटा की भी दो टाइप है रिटेन प्लेसेंटा की. एक तो रिटेन्ड नॉन सेपरेटेड, ऐसा प्लेसेंटा जो रिटेन्ड तो है ही, दैट इज़ वो डिलीवर नहीं हुआ है, बट वो सेपरेट भी नहीं हुआ है यूट्राइन वॉल से. और एक होता है ट्रैप्ड प्लेसेंटा, दैट वी विल सी इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स. वो ट्रैप्ड होता है बिकॉज वो डिलीवर वो भी नहीं होता है, वो भी रिटेन प्लेसेंटा ऊपर से, बट वो सेपरेटेड हो जाता है यूट्राइन वॉल से, बट अभी वो वजाइना से बर्थ कनाल से वो डिलीवर नहीं होता है, वो ट्रैप्ड होता है अंदर. तो वो दो टाइप के होते हैं. एंड देन देयर इज थर्ड टाइप एज वेल, विच इज़ मॉर्बिडली अधेरेंट प्लेसेंटा, जो कि यूट्राइन वॉल से कुछ ज़्यादा ही अधेरेंट होता है. ओके, वो एक थर्ड टाइप है. तो हम इसमें ये क्वेश्चन में कौन से प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं, जो डिलीवर नहीं हुआ है, रिटेन्ड है, बट सेपरेट भी नहीं हुआ है यूट्राइन वॉल से. ठीक है ना, मॉर्बिडली अधेरेंट है, मॉर्बिडली अधेरेंट तो नहीं है, लेकिन ट्रैप्ड भी नहीं है, वो अभी तक जो है प्लेसेंटा की वॉल, यूट्राइन वॉल से सेपरेट नहीं हुआ है और रिटेन्ड है. इस तरीके की जो प्लेसेंटा है, दैट इज़
नो इस तरीके की जो प्लेसेंटा है उसका कॉज जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज इज एटोनिक यूट्रस, बिकॉज यूट्रेन जो कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो प्लेसेंटा की जो साइड्स है प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो जाता है। अगर वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है तो प्लेसेंटा जो है सेपरेट नहीं हो पाता और रिटेन रह जाता है। सो यस, ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, now the next question, it says cause of incarcerated placenta. Now what does this incarcerated means? Incarcerated means imprisoned. Okay, so it is another term for trapped placenta. That is a placenta that has been separated from the uterine wall but it is not able to expel out. Okay, so it has not been able to be delivered. So this is trapped placenta. वो separate तो हो गया है but वो deliver नहीं हुआ है बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में. So this is trapped placenta. So we have to choose the correct option for the cause of incarcerated placenta. So first of all, constriction ring is the option. What is this constriction ring? Constriction ring is actually it is due to condition in the uterus where there is constriction is formed. Okay, in the lower uterine segment वहाँ पर constriction यानी कि narrowness हो जाती है. Why does this happen? Because of this contraction of the spasm, or we should say spasm of the uterine circular muscles, especially in the lower uterine segment, and that results in what you call it hourglass contraction is the term which is used for it, hourglass contraction. And this results in closed internal OS. So this is internal OS which has been closed. So there are two OS, internal OS, external OS, and this OS stands for ostium. Okay, so that means opening. So internal OS is opening into the uterus and external OS is opening into the cervix. Okay, sorry, opening into the vagina. So this will lead to vagina and internal OS is opening into the uterus. So internal OS is closed. Okay, so this is because of the constriction ring. Okay, so if there is कंस्ट्रिक्शन रिंग फॉर्म, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पैक्ड हो गया है. ओके, यहाँ से सील कर दिया गया है. सो हाउ विल द प्लेसेंटा बी एबल टू बी डिलीवर्ड? प्लेसेंटा को बेसिकली यहीं से डिलीवर होना है, बर्थ कैनाल से यहाँ आना है, और यहाँ पर जो है सील हो गया है. ठीक है, तो कैसे आएगा? ठीक है, तो वन सच रीजन इन कंस्ट्रिक्शन रिंग hourglass contraction, or we can say, in which there is a spasm of the uterine circular muscles. Okay, or that results in closed internal OS and that results in incarcerated placenta. वो separate हो भी जाता है तो भी वो आगे नहीं जा सकता. ठीक है, फिर हमारा है closed cervix. क्लोज सर्विक्स यानी कि यहाँ पर अगर ओपनिंग जो है हाँ फ्री भी है, यहाँ पर इंटरनल ओएस इज ओपन बट सर्विक्स इज एक्सटर्नल ओएस क्लोज और सर्विक्स इज क्लोज. तो ये भी एक वन सच स्टॉप है कि यहाँ पर भी अगर क्लोज है तो भी वो वजाइना से जो है बर्थ कैनाल से बाहर नहीं आ सकता. तो ट्रैप्ड प्लेसेंटा का एक रीज़न क्लोज सर्विक्स भी है. तीसरा रीज़न है अनएबल टू पुश ड्यू टू एग्जॉशन. यस, ये भी एक रीज़न है कि प्रोलॉन्ग लेबर हो गया है या बहुत एग्जॉशन हो गया है तो मदर इज अनएबल टू पुश. ओके, तो उस वजह से भी ट्रैप्ड रह जाता है. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, यहाँ पर जो है नॉर्मल सिनेरियो को क्लोज इंटरनल ओएस एक्सटर्नल ओएस ये बताया गया है. बट आई यूज दिस पिक टू एक्सप्लेन व्हाट इज क्लोज इंटरनल ओएस, किस तरीके से इन चीज़ों के क्लोज होने से इट कैन ऑब्स्ट्रक्ट द बर्थ डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा. ठीक है, ये जो है ऑब्स्टेट्रिक और बर्थ स्टेज को बिल्कुल भी सिग्निफाई नहीं कर रहा है. बट दिस पिक्चर हैज़ बीन यूज्ड टू एक्सप्लेन व्हाट इज इंटरनल ओएस एंड एक्सटर्नल ओएस. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, match the following: control contraction, manual removal of placenta, hysterectomy and placenta. Then so we have to choose कि in which condition of the placenta हम कौन सा measure जो है लेंगे. ठीक है, तो placenta adherence है, placenta accreta है, trapped separated placenta है. So there are three types of placenta has been described here and three measures है. Placenta adherence is a placenta जो कि it has not been able to be separated from the uterine wall. तो वो adhere है. ठीक है, वो सेपरेट नहीं हुआ है. ये रिटेन प्लेसेंटा की वो टाइप है जो कि सेपरेट नहीं हुई, अधेयर है. बट हाँ, मॉर्बिडली अधेरेंट नहीं है. ठीक है, कि बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेट कर दिया ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, सेपरेट भी नहीं हुआ है. और ट्रैप्ड सेपरेटेड प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है बट डिलीवर नहीं हुआ है, जैसे कि हमने इनकार्सरेटेड प्लेसेंटा में देखा, वही है ट्रैप्ड सेपरेटेड प्लेसेंटा. फिर यहाँ पर है प्लेसेंटा एक्रीटा. प्लेसेंटा एक्रीटा इज अ प्लेसेंटा जो मॉर्बिडली अधेरेंट है. ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वेजिव है.
ठीक है। सिर्फ नॉर्मली ये अधेरेंट का और एक्रीटा में ये फ़र्क है कि अधेरेंट वाला, ठीक है, सिर्फ मायोमेट्रियम पे मतलब ओवर होता है, उसके उसमें जो है अटैच होता है, इतना ज़्यादा पेनिट्रेटेड नहीं होता। लेकिन मॉर्बिडली अधेरेंट की जो एग्जांपल है उसमें थ्री टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा है दैट वी विल सी इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। बट प्लेसेंटा एक्रीटा में ये है, इसकी वन सच टाइप है मॉर्बिडली अधेरेंट प्लेसेंटा की। इसमें ये होता है कि प्लेसेंटा जो है मायोमेट्रियम में जो है इन्वेजिव होता है, उसके कुछ ज़्यादा ही अटैच होता है, अधेरेंस से ज़्यादा इसकी डिग्री होती है अटैचमेंट की यूट्राइन वॉल से, ठीक है, उसको इजीली नहीं निकाला जा सकता। So we will have to choose them for measures that we will use. So control cord traction is actually a method for trapped separated placenta, ठीक है, यानी कि सेपरेटेड है प्लेसेंटा, सिर्फ हमें जो है इसको पुल करना है, तो ट्रैप सेपरेटेड प्लेसेंटा के लिए कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो है अगर प्लेसेंटा एडहेरेंस है, यानी कि वो अभी भी यूट्राइन वॉल से जो है अटैच्ड है, तो बिल्कुल भी कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन नहीं करना है, बिकॉज इट कैन रिजल्ट इन व्हाट यू कॉल इट यूट्राइन इन्वर्जन एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, अगर सेपरेटेड है तो कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन वी कैन यूज़। फिर मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, यस, ये प्लेसेंटा एडहेरेंस में यूज़ करते हैं कि प्लेसेंटा जो है अभी भी जो है अगर अटैच्ड है, हाँ इतना ज़्यादा अटैच नहीं है बट इट इज़ स्टिल अटैच टू यूट्राइन वॉल, तो वी विल मैनुअली रिमूव इट विद द हेल्प ऑफ द हैंड्स। ओके, तो वो प्लेसेंटा एडहेरेंस के लिए यूज़ होता है। हिस्टेरेक्टोमी इज अ मेथड विच इज़ यूज फॉर प्लेसेंटा एक्रीटा, बट हाँ ये भी है कि अगर फैमिली हैज़ बीन कम्प्लीटेड तभी हिस्टेरेक्टोमी यूज़ करते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा के केस में भी, वरना दूसरे मेजर्स जो है लिए जाते हैं। बट अगर इन ये सूरत हाल देखी जाए, ये सिचुएशन देखी जाए, तो यहाँ पर प्लेसेंटा एक्रीटा के लिए ही हिस्टेरेक्टोमी जो है सूटेबल है। इन दोनों में तो बिल्कुल भी हिस्टेरेक्टोमी नहीं करेंगे। बट हाँ, हर प्लेसेंटा एक्रीटा के केस में भी हिस्टेरेक्टोमी नहीं करना है, सिर्फ उन केसेस में जहाँ फैमिली हैज़ बीन कम्प्लीटेड, ठीक है, मल्टी पैरा वुमेन है, तब हम जो है हिस्टेरेक्टोमी प्लेसेंटा एक्रीटा में करेंगे। तो मैच द फॉलोइंग में कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन जो पुल करना है, जो कि ऑलरेडी सेपरेटेड प्लेसेंटा में, और मैनुअली रिमूव प्लेसेंटा, तो वो एडहेरेंट वाले में, और हिस्टेरेक्टोमी प्लेसेंटा एक्रीटा में। Morbidly Okay, I adherent hope this placenta, was that is useful. placenta accreta, placenta increta, and placenta percreta. And for those who already know them, they can answer it themselves by pausing the video and answering it. Now let's see placenta accreta. Placenta accreta is chorionic villi attached over the myometrium, that is A option C. Okay, so that gives me um, either 2 and 4. So I've already reduced my options to 2 of them. Okay, I've already excluded 2 options. Now increta is chorionic villi invade into the myometrium, so B ka 2. Okay, so B ka 2. Okay, so I've got my answer, that is option number 2. And देखो मैंने अभी तक C देखा भी नहीं है, and I've already reached to my answer. So percreta is chorionic villi invade into the uterine serosa, that is C ka 1. So if we see what is chorionic villi is actually a part of placenta. So when we will learn about the placenta detailed description and how it is formed and detailed structure of placenta, then we will go into the detail about chorionic villi. For the time being, for the अभी के लिए आप ये याद रखिए कि chorionic villi is a part of a placenta. Now there are 3 layers which have been described here. Basically यहाँ पर तो 2 ही का जिक्र है, uterine serosa and myometrium. So you need to know that uterine wall is made up of 3 layers. Okay, so uterine wall is made up of 3 layers. The innermost layer is endometrium, okay, which is basically epithelial layer along with the mucous membrane. Then फिर उसके अंदर जाएंगे तो there is myometrium, that is basically muscular layer. फिर उसके भी अंदर अगर हम जाएंगे बेसिकली हम बाहर जा रहे हैं, सो द इनरमोस्ट इज द एंडोमेट्रियम, एंड इसी में जो है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मॉडिफिकेशन होती है एंडोमेट्रियम में एंड फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज डेसिडुअल लेयर. ओके, और डेसिडुअल का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ. तो द रीज़न इट हैज़ बीन गिवन दिस नेम बिकॉज ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ दिस एंडोमेट्रियम, ये जो डेसिडुआ है वो शेड ऑफ हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज़ वाई द नेम इज़ गिवन. उसमें भी जो सुपरफिशियल लेयर है वो शेड ऑफ होती है बेसिकली, बट डेसिडुआ इसीलिए उसका नाम दिया गया. तो एंडोमेट्रियम की मॉडिफिकेशन जो प्रेगनेंसी में देखी जाती है दैट इज़ नोन एज डेसिडुआ. तो वो हमारी इनरमोस्ट लेयर हो गई. फिर उसके बाद मायोमेट्रियम मस्कुलर लेयर, फिर उससे आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरीमेट्रियम, और पेरीमेट्रियम इज़ अ लेयर विच इज़ बेसिकली यूट्राइन सेरोजा. ओके, जो यूट्राइन सेरोजा लिखा हुआ वही पेरीमेट्रियम है, दैट इज़ आउटर मोस्ट लेयर. तो कोरियोनिक विलाई प्लेसेंटा का एक पार्ट है
that invades that attaches over the myometrium. बेसिकली ये प्लेसेंटा एक्रीटा है की डेफिनेशन है या उसका डिस्क्रिप्शन है. उसमें कोरियोनिक विलाय जो है सिर्फ ओवर मतलब मायोमेट्रियम के जैसे ऊपर होती है, उसको अभी इन्वेड उसके अंदर जो है उसके अंदर नहीं जाती, इन्वेड नहीं करती, बस उसके ऊपर से जो है अटैच होती है, तो वो प्लेसेंटा एक्रीटा है. ठीक है. और जो नॉर्मल प्लेसेंटा का है वो क्या होता है, वो सिर्फ जो है एपिथेलियल लेयर जो मैंने डेसिडुआ बेसालिस जो डेसिडुअल लेयर मैंने बताई जो एंडोमीट्रियम की मॉडिफिकेशन है इनर मोस्ट लेयर, वो नॉर्मली जो प्लेसेंटा होता है वो उसी से अध्ययर करता है. जो प्लेसेंटा अध्ययरेंस भी जो हमने पढ़ा है जो यूट्राइन वॉल से अध्ययर होता है बट सेपरेटेड नहीं होता, वो भी जो है सिर्फ डेसिडुआ बेसालिस से ही अटैच्ड होता है, उसी के ऊपर रहता है. ठीक है. जो कि एंडोमीट्रियम की मॉडिफिकेशन है. बट वहाँ यहाँ पर उस किस्म के प्लेसेंटा की बात ही नहीं हो रही है, वो नॉर्मल सिनेरियो है. बेसिकली वो हालांकि वो सेपरेट नहीं होता है, प्लेसेंटा अधेरेंस भी अगर वो सेपरेट नहीं भी हुआ है तो भी वो जो अटैच भी होता है तो वो प्लेसेंटा किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा की सबसे यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर एंडोमीट्रियम की एक मॉडिफाइड लेयर है, बेसिकली वो एंडोमीट्रियम का ही पार्ट है, वो है डेसिडुआ बेसालिस, तो उससे ही जो है उसके पास ही वो अटैच होता है. बट यहाँ पर प्लेसेंटा एधेरेंस की बात नहीं हो रही है, थ्री मॉर्बिडली एधेरेंट प्लेसेंटा की बात हो रही है. उसमें जो एक्रीटा है वो जो है सबसे सबसे माइल्डेस्ट फॉर्म है अगर हम मॉर्बिडली एधेरेंट की बात करें, दैट इज उसमें जो है प्लेसेंटा कोरियोनिक विला विच इज अ पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, वो जो है यूट्रस की इनर मोस्ट तो नहीं, वो तो नॉर्मल सिनेरियो है एंडोमीट्रियम या डेसिडुआ बेसालिस से अटैच होना, उधर तो नहीं, लेकिन उसकी जो नेक्स्ट लेयर है मस्कुलर लेयर मायोमेट्रियम के ऊपर होता है, अटैच्ड ओवर द मायोमीटम, वो प्लेसेंटा एक्रीटा है विच इज द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द मॉर्बिडली एधेरेंट प्लेसेंटा. ठीक है. तो इनक्रीटा क्या है, उसमें प्लेसेंटा यानी कोरियोनिक विलाई पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा वो इन्वेट कर देता है मायोमीटम में, इसमें सिर्फ जस्ट उसके ऊपर है, अब इसमें तो इसके अंदर घुस गया है. ठीक है. इन्वेड इनटू द मायोमीटम. और जो मोस्ट डेंजरस यहाँ पर परक्रीटा है वो क्या करता है, ये मायोमीट्रियम को भी क्रॉस करके जो लास्ट लेयर है पेरीमीट्रियम दैट इज नोन एज यूट्राइन सेरोसा जो कि सेरस लेयर है, वो उसमें इन्वेट कर देता है परक्रीटा. ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके. और इसलिए ऑप्शन जो है 2 इज़ करेक्ट. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट फॉर्चुनेटली जो माइल्डेस्ट फॉर्म है प्लेसेंटा एक्रीटा, ये जो है मॉर्बिडली एधेरेंट प्लेसेंटा में अगर देखा जाए तो 80% जो है प्लेसेंटा एक्रीटा ही है, एंड देन इनक्रीटा है 15% और सिर्फ 5% जो है द मोस्ट डेंजरस परक्रीटा है. ठीक है. मॉर्बिडली एधेरेंट प्लेसेंटा के अंदर. Now Okay, this I is a hope this is pictorial clear now. representation of how different types of morbidly adherent placenta look. Okay, so this is normal placenta that is just attached to the decidua basalis. Now a placenta accreta that is somewhat थोड़ा सा इसके बियॉन्ड गया है, दैट इज ओवर द मायोमेट्रियम. देन इनक्रीटा वो इन्वेड इनटू द मायोमेट्रियम, एंड देन परक्रीटा दैट इज जैसे इन्वेडेड इनटू द uterine serosa, that is perimeter. Now the last question on this particular topic, all of the following is true about placenta accreta except, okay, we have to choose the wrong option. placenta previa placenta previa or implantation over the uterine scar are risk factors. Yes. Okay, look at the risk factors for the placenta accreta, these are placenta previa, that is the low laying placenta, यानी कि placenta कहाँ implant होता है, बिल्कुल low यानी कि over the cervix, okay, nearly over the cervix, so this is known as placenta previa. So this is the risk factor, but you have to note that placenta previa in the present pregnancy is a risk factor for placenta accreta and not the past history of placenta previa. Okay, so present placenta previa और इम्प्लांटेशन ओवर द यूट्राइन स्कार आर द रिस्क फैक्टर. अगर कहीं यूट्राइन स्कार है उसके ऊपर इम्प्लांटेशन होता है प्रेजेंट प्रेगनेंसी में तो वो भी रिस्क फैक्टर है. इसके अलावा सिजेरियन सेक्शन, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर, दैट हैज़ नॉट बीन मैंशनड हियर बट दैट इज ऑल्सो करेक्ट. अगर ये ऑप्शन की जगह अगर वो रहता कि previous cesarean section, so that is also a risk factor. But yes, present placenta previa in the present pregnancy is one of the most common risk factor along with the प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, तब तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है. इसके अलावा मटर्नल एज भी एक रिस्क फैक्टर है, अगर वो एडवांस है मटर्नल एज तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है. ठीक है. तो इस तरीके से 2-3 जो है रिस्क फैक्टर्स है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. Then the next one is plane of cleavage is along the spongy layer of the decidua. No,
This is incorrect because actually plane of cleavage is absent in case of placenta accreta. Okay, तो plane of cleavage is absent, ये आपको याद रखना है. वैसे ही ये जो statement है plane of cleavage is along the spongy layer of the decidua, it is in the normal scenario, it is not for placenta accreta, that is the normal placenta. ये तो morbidly adherent placenta, ये एक type है placenta accreta. इसमें जो है plane of cleavage यानी कि separation जो plane है वो absent होती है. नॉर्मली वो अलॉन्ग द स्पॉन्जी लेयर होती है, यानी कि यहीं से जो है स्पॉन्जी लेयर ऑफ द डेसिडुआ से जो है सेपरेशन होता है प्लेसेंटा का, वो नॉर्मल सिनेरियो है. बट इन केस ऑफ मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लेसेंटा, यानी उसके तीनों टाइप में, और यहाँ पर तो प्लेसेंटा एक्रीटा लिखा है, तो इसमें भी प्लेन ऑफ क्लीवेज इज एब्सेंट. ओके, सो वी हैव टू नोट दैट डेसिडुआ जो है वो हमने जैसे को पढ़ा कि मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोमीट्रियम है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो वो है. और डेसिडुआ भी जो है डेसिडुआ कैप्सुलरिस जो होता है, एक वो एम्ब्रियो के ऊपर होता है, एक होता है डेसिडुआ बेसालिस विच इज मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा. वो जो डेसिडुआ बेसालिस है उसकी फर्दर 3 लेयर्स है, कॉम्पैक्ट, देन स्पॉन्जी. ओके, ऐसा हमारे फिर इसकी 2-3 लेयर है. और उसमें जो है एक टर्म आएगा आपको यहाँ पर, नीटा बुश लेयर. व्हाट इज दिस नीटा बुश लेयर? इट इज एक्चुअली जो डेसिडुआ बेसालिस की मैंने कहा कि फर्दर 3 लेयर्स है, उसमें जो कॉम्पैक्ट आउटर मोस्ट है और मिडल में जो है स्पॉन्जी लेयर होती है डेसिडुआ की, उन दोनों के बीच में एक फाइब्रिन मटेरियल डिपॉजिट होता है, उस लेयर को नीटा बुश लेयर बोलते हैं. एंड दैट इज ऑल्सो एब्सेंट इन केस ऑफ प्लेसेंटा एक्रीटा. और एब्सेंस ऑफ डेसिडुआ बेसालिस भी होता है. ठीक है, कभी कभी जो है कंप्लीट डेसिडुआ बेसालिस इज एब्सेंट, और कभी कभी बेसालिस अगर होता भी है डेसिडुआ बेसालिस तो वो भी डिफेक्टिव होता है विद एब्सेंस ऑफ नीटा बुश लेयर. तो दीज आर द एब्सेंस पॉइंट दैट यू हैव टू नो कि प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या क्या एब्सेंट होता है. प्लेन ऑफ क्लीवेज इज एब्सेंट, डेसिडुआ बेसालिस इज एब्सेंट, और डिफेक्टिव डेसिडुआ बेसालिस इज प्रेजेंट, और नीटा बुश लेयर इज ऑल्सो एब्सेंट. ठीक है, नीटा बुश लेयर इज अ fibrin deposited material in between the compact and spongy layer of the decidua basalis. तो वो जो है नीटा बुश लेयर वो तो एब्सेंट होती ही है, और ये जो एक कंपोनेंट है डेसिडुआ बेसालिस का, एक तरीके से ये होता है कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी के बीच में. तो अगर वो ही एब्सेंट है तो इसका मतलब है कि डिफेक्टिव डेसिडुअल लेयर है. ठीक है, इसलिए अलावा कभी कभी पूरा डेसिडुआ बेसालिस भी एब्सेंट होता है, और प्लेन ऑफ क्लीवेज तो एब्सेंट होती ही है. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको प्लेसेंटा एक्रीटा के बारे में याद रखनी है, और प्लेसेंटा एक्रीटा का रिस्क फैक्टर्स भी. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन करेक्ट था, ये भी सही है, डिफेक्टिव होता है, कभी कभी डेसिडुआ बेसालिस एब्सेंट भी होता है, नीटा बुश लेयर भी हमेशा एब्सेंट होता है प्लेसेंटा एक्रीटा में. सो व्हाट इज द wrong statement? This one is wrong. Plane of cleavage is along the spongy layer of the decidua. No, plane of cleavage is absent in placenta accreta. So hope I